Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Beta, here I am today with your next lecture, third lecture of how to take job interview. As you know all best that we were just taking up our unit 20. The title is how to take job interview. We had discussed a lot of things, plethora of ideas, and now we have to move forward. We are going steady in this chapter because these are something related to your lifelong struggle, lifelong activity. So I am moving somewhat slowly. Why? Just because to make you understand each and everything. Okay? If you have learned all these things by heart, if you knew them, if you understood them, it will be long lasting with you. Okay? So be attentive and listen it. बेटा, हम इससे पहले कुछ डिस्कस करके आए हैं. हमें राइटर ने बताया है कुछ लिबास के बारे में. व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस वी हैव टू टेक अप, वी हैव टू पुट ऑन व्हाइल टेकिंग अ जॉब इंटरव्यू. फिर हमें उसने बताया कि व्हाट वी कैन डू प्रायर टू अवर जॉब इंटरव्यू. हम क्या कर सकते हैं. हमें वो बताता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस वी शुड ड्रेस स्मार्टली. ठीक है, फॉर द इंटरव्यू. And we should avoid overdressing that seems clumsy, disrespectful, cheap and untidy. Okay, these were the points he had to make. He had just discussed with us to make us understand what should we do. So then further वो हमें क्या कहता है कि before going to take the interview we should visit some current employee of that organization so that we may have a good idea what sort of we can say that what the formal nature of the company is. To know the formal nature, how formal they are, whether they allow you to be informal, slightly casual or not. Okay, this will give you a better understanding of that organization so that you may dress up in that way. Okay, you should dress slightly ahead of that so that to get respect. These were the points he had discussed. So moving further, what he says, job interviews are nerve-wracking no matter how smart you are, because you are essentially submitting yourself to be judged in a half hour by strangers who have the power to control your financial future, who wouldn't be anxious. कहता है जॉब इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो नर्व रैकिंग होते हैं, वो स्ट्रेसफुल होते हैं, एंजाइटी उनमें होती है. वी बिकम स्ट्रेसफुल. बड़े दबाव हम पे डाला होता है, हम बड़े प्रेशराइज हो जाते हैं इनकी वजह से. नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर. स्मार्ट मीन इंटेलिजेंट, ज़हीन. कहता है ये जो जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं ये बड़े स्ट्रेसफुल होते हैं. इससे कोई लेना देना नहीं कि आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं. यू विल फील द स्ट्रेस, यू विल टेक द स्ट्रेस ऑफ इंटरव्यू. बिकॉज अब वजह देते हैं, यू आर एसेंशली सबमिटिंग योर सेल्फ टू बी जज इन हाफ आवर. कहता है क्योंकि आप ख़ास तौर पे सबमिटिंग योर सेल्फ टू बी जज, आप दूसरों के सामने बैठे हुए होते हैं कि वो आपको जज करें, वो आपका मीन्स के आपको एनालाइज करें, आपको जज करें इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में, बाय द स्ट्रेंजर्स. और ऐसे लोग आपको बेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं, आपकी वैल्यू जजमेंट होती है. जो लोग कैसे होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं. हु हैव द पावर टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल फ्यूचर, जिनके पास आपके आने वाले मुस्तकबिल में आपके जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, आपकी जो कमाई है, आपने जो अर्न करना है, उसकी पावर उनके पास होती है. बिकॉज ऑफ देयर जजमेंट यू विल गेट और यू विल बी बैनिश्ड, यू विल बी जस्ट रिजेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर जजमेंट. कहता है उन्हें कोई अजीब नहीं कह सकते, जो अजनबी लोग होते हैं वो जज कर रहे होते हैं आपको. और फिर होता क्या है, who wouldn't be anxious. कहते हैं आपको वो लोग जज कर रहे होते हैं, ऐसे अजनबी, ऐसे अनजान लोग जज कर रहे होते हैं जिनके हाथ में आपके आने वाले वक्त का फाइनेंशियल फ्यूचर होता है, यानी जॉब होती है जिससे आपको वो या तो इंडोर्स कर देंगे या आपको रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. एंड हु वुडंट बी एंशियस, और ये ऐसे लोग हैं जिनको कोई फिक्र नहीं होती कि आप सिलेक्ट हों या आप रिजेक्ट हों.
The interviewers have already reviewed your resume and know many things about your academic achievements and work experience, if any. So the primary purpose of the interview is to fill in the gaps and assess if you are a good fit or otherwise. Let me repeat it again. The interviewers have already reviewed your resume and know many things about your academic achievements and work experience, if any. So the primary purpose of the interview is to fill in gaps and assess, not assess if you are a good or fit or otherwise. कहता है जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी उन्होंने पहले ही रिव्यूड मीन देखी भी होती है, परखी भी होती है जो रेज्यूमे, आपकी सीवी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एंड नो मैनी थिंग्स अबाउट योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, और बहुत सी बातें जानते होते हैं आपकी तालीमी कामयाबियों के बारे में, यानी आपने क्या क्या पढ़ा है, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इसमें, आपके यानी कि मार्क्स क्या हैं, ग्रेडेशन क्या है, ये सारा कुछ वो जानते होते हैं. एंड वर्क एक्सपीरियंस, और वो ये भी जानते होते हैं कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस, कोई इस काम में तजर्बा भी है, इफ़ एनी, अगर आपने कहीं काम किया हुआ है तो. सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, कहता है प्राइमरी सबसे बड़ा मकसद जो होता है इंटरव्यू का, इज़ टू फिल इन द गैप्स, वो सीटें भरना होता है जो उनके पास वैकेंट होती हैं. फिल द गैप्स, उन गैप्स को भरना होता है. इंटरव्यू के थ्रू वो तमाम जो पोस्ट जो वैकेंट होती हैं उनको फिल आउट करते हैं. एंड असेस इफ़ यू आर अ गुड फिट और अदरवाइज, और एक तो मकसद ये होता है कि जो सीट्स खाली हैं उनको फिलअप करना है. दूसरा मकसद ये होता है टू असेस, कि वो जानते हैं इफ़ यू आर अ गुड फिट और अदरवाइज, यानी इस इंटरव्यू के थ्रू वो ये जानते हैं, वो ये एनालाइज करते हैं कि क्या आप इस पोस्ट के लिए, इस सीट के लिए फिट हैं, क्या आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, क्या आपके पास वो सारी स्किल्स हैं, क्या आपके पास वो नॉलेज है, और अदरवाइज आप इसके लिए फिट नहीं है. दिस इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द इंटरव्यू, कि एक तो वो आपकी स्किल्स वगैरह, आपका नॉलेज वगैरह जांचते हैं कि क्या आप इस सीट के लिए फिजिबल भी हैं कि नहीं. दूसरा वो ये जानते हैं, दूसरा जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि टू फिल द गैप्स, वो सीट्स को उन्हें फिल करना होता है, हायर करने होते हैं लोग. अच्छा, सीरियसली, if you can prove that you're smart, high functioning person, you'll pass a major test. कहते हैं सीरियसली, बड़ी संजीदगी से, कहता है इफ़ यू कैन प्रूव दैट, अगर आप ये साबित कर देते हैं कि यू आर स्मार्ट, कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, हाई फंक्शनिंग पर्सन, आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, यू विल पास द मेजर टेस्ट, तो आप ये बड़ा टेस्ट पास कर लेते हैं, यानी ये इंटरव्यू कामयाब इसमें हो जाते हैं. Students show that about 30% of hiring decisions are made within the first 5 minutes and 5% are made in the first 60 seconds. So you have to look into that part. अब बेटा अगेन उसी चीज़ पे आ गए. अब स्टार्टिंग से इंटरव्यू को डिस्कस करता है हमारे साथ. पहले उसने प्रायर टू इंटरव्यू व्हाट वाज नेसेसरी ही टोल्ड अस. ड्रेसिंग आपकी, आपका गेटअप, आपकी अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें उसने हमसे डिस्कस कर दी. अच्छा, उसके बाद उसने हमें इंटरव्यूज़ के बारे में आगाह किया कि यानी वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको जानते नहीं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, एंड दे हैव नथिंग टू डू विद योर फाइनेंशियल फ्यूचर. ओके, दे आर नॉट एंशियस अबाउट इट. ओके, फिर बेटा हमें बताता है कि your resume, your personal information has already been reviewed by them, by the interviewers. So what happens then next? अब लेट्स सपोज कि आप एक इंटरव्यू के कमरे में जाते हैं. व्हेन यू हैव एंटर्ड द इंटरव्यू रूम, व्हाट विल हैपन? आप अंदर जाते हैं, उनके पास आपकी रेज्यूमे, आपकी सीवी पड़ी हुई है, एंड दे नो व्हाट यू आर. दे कॉल यू बाय योर नेम. ओके, मिस्टर असद, मिस्टर उमर, मिस्टर अहमद, वट एवर योर नेम इज़, वट एवर द नेम यू बियर, यू विल बी कॉल्ड बाय दैट वेरी नेम. सो अब हम एंटर होते हैं. अब उसके अंदर की सारी बात हमें बताता है कि इंटरव्यू क्या होगा. रेज्यूमे आपकी उन्होंने सीवी देखी होती है, आपकी अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट्स उनके सामने होती हैं, आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ देम. और फिर इसका प्राइमरी पर्पस बताता है इंटरव्यू का, हायरिंग प्रोसेस का. ये जो एक बड़ा अहम, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक एलिमेंट है, इसका हम बताता है कि इंटरव्यू है क्या. एक्चुअली इंटरव्यू के 2 मेजर गोल्स हैं बेटा. एक तो ये है कि वो फिल करते हैं इन गैप्स को, इन सीट्स को जो वैकेंट हैं. दूसरा ये है कि वो आपको असेस करते हैं, आपकी एबिलिटीज़ को, आपके नॉलेज को. सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट?
लेट्स इमेजिन, कहता है अगर आपने बड़ा स्मार्टली अपने आप को स्मार्ट प्रूव कर दिया है, देन इट, तो बेटा व्हाट हैपन्स, कहता है कि अगर सीरियसली आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, हाई फंक्शनिंग मैन, यू कैन फंक्शन दिस, यू कैन परफॉर्म दिस टास्क, सो यू विल पास द मेजर टेस्ट। कहता है ये हायरिंग प्रोसेस का जो मेजर टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, या पास कर लेंगे। Studies show that about 30% of hiring decisions are made within the first 5 minutes and 5% are made in the first 60 seconds. So you have to look into that part. अब क्या कहता है? कहता है कि स्टडीज़ हमें ये शो करती हैं, हमें सर्वेज बताते हैं, हमें रिसर्च बताती है कि हमारे जो 30% हायरिंग प्रोसेस के जो डिसीजंस होते हैं वो 5 मिनट्स में हो जाते हैं। यानी योर अपीयरेंस स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू, समटाइम्स सीरेनिटी स्पीक्स अ लॉट, आपकी खामोशी बहुत कुछ कन्वे कर देती है। अच्छा, हाउ, कहता है जब आप एंटर होते हैं, लेट्स इमेजिन यू आर इन एन इंटरव्यू रूम, आप इंटरव्यू रूम में दाखिल होते हैं, आपको वहाँ पे दाखिल होना, आपका गेटअप, आपकी क्लॉथिंग, आपका वे ऑफ वॉकिंग, आपका आई कॉन्टैक्ट, आप वे ऑफ टॉक, हाउ यू एड्रेस देम, these are all the things that counts a lot. So in first 5 seconds, in the first 5 seconds, यही कुछ हो सकता है ना, first 5 minutes में आप आते हैं, how you deal them, ठीक है, how you address them, how you talk to them, these are the things that count a lot. फिर आपको जब वो कहते हैं yes gentlemen introduce yourself, these are the things that count a lot. So कहता है कि 30% जो decisions होते हैं वो first 5 minutes में ले लिए जाते हैं about hiring process and 5% are made in the first 60 seconds. और कहता है फिर ये 5% जो डिसीजंस होते हैं वो फर्स्ट मिनट में, ये जो मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं, हाउ टू एंटर द क्लास इंटरव्यू रूम, इससे ये डिसीजंस ले लिए जाते हैं। और क्या कहता है, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट पार्ट, तो कहता है दिस पार्ट यानी इनिशिएटिव, कमेंसमेंट, एंटरिंग ऑफ द इंटरव्यू रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यू शुड नो अबाउट हाउ टू एंटर इन द रूम, यू शुड बी वेरी फॉर्मल, ओके, योर ड्रेसिंग। इसीलिए उसने हमें क्या कहा कि देखें वो 35% ये आपका डील करता है किससे, नॉट क्वेश्चनिंग, नॉट योर एकेडमिक्स, जस्ट इट डिपेंड्स, ऑल इट रिलाइज ऑन योर अपीयरेंस, आपका ड्रेस कैसा है, आपके मैनर्स कैसे हैं, हाउ यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस देम, हाउ यू जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नॉट वर्बली बट orally, ठीक है। So considering the importance of your first impression as well as your own nerves in the beginning of the interview, it's a good idea to carefully plan your opening. कहता है considering the importance of your first impression, आप अपने पहले तासर पे सोचें, गौर करें, इसको कंसिडर करें, ये काउंट करता है, ठीक है, as well as your own nerves in the beginning of the interview. अच्छा, कुछ लोग बेटा when they enter in the interview room and they face interviewers, they got detract in a way. Some people, they lose their confidence, some people are shivering, some people get their color off, कुछ लोगों का रंग ही उड़ जाता है, कुछ लोग शिवरिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। These are the things that give a negative impression. बड़ा नेगेटिव, you should be confident, you should sit in a proper way, ठीक है, आप प्रॉपरली उनको एड्रेस करें, आप प्रॉपरली उनको सलाम करें, या अपने आप को जैसे भी एड्रेस करते हैं उनको जाएं, उनको एड्रेस करें बड़ा कॉन्फिडेंट अंदाज में। डोंट शो एनी मिस कॉन्फिडेंस, डोंट शो एनी अनटाइडी बिहेवियर, ठीक है, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका स्ट्रेस ना शो हो, यू शुड लुक कॉन्फिडेंस। इससे आपको जांचा जाता है कि क्या ये किसी भी नई सिचुएशन को डील करने में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कितना ज़्यादा फर्म है, कितना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, एंड हाउ ही कैन फेस द न्यू सिचुएशंस, ठीक है। अच्छा सो फिर क्या कहता है कि आपने इंपॉर्टेंस, आपका फर्स्ट इंप्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने कंसिडर करना है, और आपकी जो नर्व्स हैं बिगनिंग में, इंटरव्यू के नर्व्स में क्या, आपका रवैया क्या है, आप कंफ्यूज ना हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट्स गुड आइडिया टू केयरफुली प्लान योर ओपनिंग। सो कहता है यू शुड प्लान प्रायर टू योर इंटरव्यू योर ओपनिंग, हाउ यूल गेट इन टू द रूम, हाउ यूल एड्रेस देम, ठीक है।
आप किस तरह एंटर होंगे, आप किस तरह उनको एड्रेस करेंगे, आप किस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये ओपनिंग जो है बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 35% ऑफ द डिसीजन रिलाइज ऑन दिस ओपनिंग सिनेरियो। ठीक है, अब क्या कहता है, यानी इंटरव्यू तो बात की बात है, आप एंटर हुए हैं एंड यू आर बीइंग जज्ड, आप जज हो रहे हैं। कहता है इफ़ यू कैन एस द फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है if you overcome all these things and if you get success in the first question, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एंट्रेंस है, आप इसमें अगर एस यानी कामयाब हो जाते हैं, इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो इससे आपके अंदर खुद एतमादी और ज़्यादा आएगी आने वाले नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। यानी आप एंटर हो गए, बड़े कॉन्फिडेंट मैनर में आपने उनसे टॉक किया, आपने उनको हेलो हाई किया, ठीक है, आपने उनको सैल्यूटेशंस की, यानी सलाम दुआ हाल अहवाल पूछा। दिस इज़ द थिंग दैट काउंट्स अलॉट व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू। आप जब जाएंगे सो कहता है इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा नेक्स्ट फर्दर पॉइंट्स के लिए। सो व्हाट ही सेज, वन इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा कहता है कि कामयाबी की एक कुंजी क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। Wherever you go, why interviews are conducted, क्यों इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, जस्ट टू नो द सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ मच सेल्फ कॉन्फिडेंस वन हैज़, कि किसी शख्स में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको अपने आप पे एतमाद कितना है। अच्छा, सम टाइम व्हाट हैपन्स, यू आर आंसरिंग राइट, योर आंसर इज करेक्ट, बट एट द वेरी सेम टाइम द इंटरव्यूअर आस्क्स यू अगेन, आर यू श्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट, आर यू श्योर वट एवर यू आर सेइंग। वो क्या करते हैं, वो आपको पजल करते हैं एंड नो हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ मच फर्म नॉलेज यू हैड, कि वो ये देखना चाहते हैं बेटा कि आपका नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या आपको कितना ज़्यादा अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इज इट क्लियर? सो दिस इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट क्या कहता है, एन इम्पॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ प्रेपरेशन। बेटा क्या कहता है कि आप जब अंदर दाखिल होते हैं बड़े अच्छे अंदाज में, तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और फिर क्या कहता है कि जो कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है, की है, वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पे खुद एतमादी होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, एन इम्पॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ प्रेपरेशन। ये क्या है, कहता है आपको जब आप प्रिपेयर करेंगे, जब आप तैयारी बड़ी अच्छी होगी आपकी, तो फिर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होगा। यूज़ अ फर्म हैंड शेक, कहता है बड़े अच्छे तरीके से हाथ मिलाएं। स्माइल, मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके चेहरे पे। मेक आई कॉन्टैक्ट, लोगों की नज़रों से नज़रें मिलाएं, इंटरव्यूअर्स की, ठीक है। अच्छा, कहता है जी अब दिस इज़ द वे हाउ यू कैन एस योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका क्या होना चाहिए, यूज़ अ फर्म हैंडशेक, अच्छी तरह से हाथ मिलाएं। स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। दीज आर द इंप्रेशन दैट मेक्स योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये आपके चेहरे के तासुरात हैं जो आपका तासुर देते हैं दूसरे लोगों को, ईदर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट, ठीक है। हैंडशेक करें, स्माइल करें, आई कॉन्टैक्ट रखें, ठीक है। और क्या कहता है, सिट टॉल, ठीक तरह से बैठे, लीन बैक होकर ना बैठे, पीछे टेक लगा के एक तरफ झुके हुए, एक तरफ मुड़े हुए, मुरझाए हुए ना बैठे। सिट टॉल, ठीक तरह से बैठे, ठीक है। एंड लीन इन टू शो यू आर इंगेज, जो भी आपसे क्वेश्चन करता है उससे आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उसकी तरफ जरा लीन हो, आगे तरफ झुके, उसको सुने, उसको प्रॉपर अटेंटिव ईयर दें, सो दैट ही मे गेट द आइडिया दैट द वन whom I am questioning, he has given attentive ear to me। उसको सुने प्रॉपर तवज्जो से, अटेंशन से। लीन इन टू शो यू आर इंगेज, उसको ये बताएं, उसको ये फील करवाएं कि यस आई एम इंगेज इन योर क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन सुन रहा हूँ, मैं इसमें इंगेज्ड हूँ। सो फर्दर बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अब बेटा ये बहुत अहम चीज़ होती है विच द पीपल मोस्टली दे लैक इन देयर इंटरव्यूज़। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड रियली लिसन। कहता है जो भी आपसे क्वेश्चन हो रहा है, यू शुड बी प्रेजेंट देयर। लोग क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली नॉर्मली लोगों से क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का सोचना, मैं इसको फलां क्वेश्चन का ये आंसर करूँगा। नो, डोंट डू दैट। यू शुड बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो आपसे बात की जा रही है, जो क्वेश्चन किया जा रहा है, उसको सुने अटेंटिवली, ठीक है। एंड रियली लिसन। अब क्या कहता है, रादर देन थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से इन द फ्यूचर। वही बात कहता है कि आप अपने दिमाग में आने वाली बातों के बारे में मत सोचते रहें,
रादर जो भी प्रेजेंट मोमेंट है यानी अभी आपसे जो पूछा जा रहा है उस पर फोकस करें, उसको तवज्जो से सुने। अच्छा, मोर ओवर फोकस ऑन व्हाट द हायरिंग मैनेजर इज सेइंग नाउ एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। बेटा कहता है इससे हट के कहता है उस बात पे तवज्जो करें, उस बात को सुने जो हायरिंग मैनेजर जो आपको हायर करने के लिए बैठा हुआ है, जो आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उसको बड़ी अटेंटिवली सुने और उसके अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक उसको आंसर करें, उसको जवाब दें। इट शुड बी अ फ्लूइड बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन। फ्लूइड क्या होता है बेटा? लिक्विड, जिसको हम कहते हैं अपनी साइंसेज में। अब कैसी होनी चाहिए डिस्कशन? फ्लूइड होनी चाहिए, रिजिड या स्ट्रक नहीं होनी चाहिए। आप एक ही पॉइंट पे बात करें, नो, यू शुड बी बैक एंड यू शुड गो बैक एट फोर्थ टू द पॉइंट। उस पॉइंट के इर्द गिर्द उसको घुमाएं, उसको बताएं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, यानी वो पॉइंट क्लियर करें। उससे कुछ चीज़ें, जैसे हम नहीं कहते कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसमें हम क्या कहते हैं, यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये बात कहाँ से ली गई है, उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे जो बात है, ताकि वो बात क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि वो आपसे एक पॉइंट पूछता है तो आप उसको एक पॉइंट बता के खामोश हो जाएं। यू शुड बी फ्लूइड। आपकी डिस्कशन कैसी होनी चाहिए? बड़ी डिटेल्ड होनी चाहिए। एंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हो उस बात में आपकी एनर्जी भी हो, ताकि उसको आपकी एक्साइटमेंट भी पता चले। इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट द पोजिशन, द इंटरव्यूअर विल गेट एक्साइटेड अबाउट यू। कहता है अगर आप एक्साइटेड हैं, आप दिलचस्पी लेते हैं इस पोजीशन हासिल करने में, ये सीट हासिल करने में, तो इसमें क्या करें, द इंटरव्यूअर विल गेट एक्साइटेड अबाउट यू। जितना आप एक्साइटमेंट शो करेंगे उतनी एक्साइटमेंट यू विल गेट ऑफ द इंटरव्यूअर। आप इंटरव्यूअर की और ज़्यादा एक्साइटमेंट, उसकी और ज़्यादा अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ज कर लेंगे। यू विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ द इंटरव्यूअर। बेटा ये जो हमारा पैराग्राफ है दैट वी हैव व्यूड, दैट वी हैव स्टडीड, इसमें हमें गिनी चुनी कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बताता है। वो क्या बताता है? एक तो कहता है आप इसका स्ट्रेस मत लें। आप जितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपको स्ट्रेस होता है इंटरव्यू का, व्हाट्सएवर दैट इज़। क्यों? कि आप अल्टीमेटली उन लोगों के सामने जाके अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, और उन्हें इससे आपके फाइनेंशियल गेन से कुछ मकसद नहीं है। उनको कोई फिक्र नहीं है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की। द सेकंड थिंग इज़ कि वो जो इंटरव्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब तीसरी चीज़ क्या है? कहता है वो इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? इंटरव्यू होता है आप मकसद समझिए इंटरव्यू का, उस मकसद को हमने हल करना है। कहता है इंटरव्यू का मकसद ये होता है, एक तो जो गैप्स हैं यानी जो सीट्स वैकेंट हैं उनको फिल करना है, दूसरा आपकी स्किल्स को जांचना है, आपको असेस करना है कि आप इस पोस्ट के लिए बिफिटिंग भी हैं कि नहीं, इसके लिए ठीक भी हैं कि नहीं, सूटेबल भी हैं कि नहीं। और फिर कहता है अगर आपने अपने आप को स्मार्ट शो कर दिया, प्रूव कर दिया, हाई फंक्शनिंग पर्सन प्रूव कर दिया, तो आप ये टेस्ट पास कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट क्या कहता है? हाउ टू टैकल द इंटरव्यू। अब हमें क्या देता है? सजेशंस देता है, स्ट्रेटजीज देता है। पहले कहता है फर्स्ट 30% जो डिसीजन, 35% जो डिसीजन होता है वो इनिशिएशन का होता है। वो कमेंसमेंट में ही वो डिसीजन कर लेते हैं कि ये बंदा हम सेलेक्ट करेंगे या नहीं। वो किस वजह से होता है? कि आपकी एंट्री जो होती है इंटरव्यू रूम में, उससे यू शुड हैव वेरी सोबर लुक। आपके इसलिए पहले उसने ड्रेस के बारे में बताया कि यू शुड ड्रेस योर सेल्फ स्मार्टली, यू शुड वियर अ सूटेबल ड्रेस फॉर दैट वेरी फील्ड। फिर वो हमें क्या कहता है? कहता है आपका ये जो फर्स्ट जो स्पैन है ना बिगनिंग का, ये बड़ा प्रॉपरली प्लान होना चाहिए, ओपनिंग बड़ी प्रॉपरली प्लान होनी चाहिए। फिर कहता है अगर आपका ये जो टेन्योर है, ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ये इसमें आप अगर सक्सेसफुल होते हैं तो इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट। ये आपको बड़ी खुद एतमादी देगा। फिर खुद एतमादी आएगी कहाँ से? वो आपको अपनी प्रिपरेशन से आएगी। अब आपको बताता है कि आपने मिलना कैसे, उनको इस फर्स्ट सेशन में आपने करना क्या है। कहता है फर्म शेक हैंड करें, उनको बड़ी पुरएतमाद अंदाज में, पुरतपाक अंदाज में उनसे शेक हैंड्स करें, अपने चेयर पे स्माइल रखें, जिसको आप मेरे उससे आई कॉन्टेक्ट रखें। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। अब बैठें कैसे? झुक के नहीं बैठना, सीधा होकर बैठना है। यू शुड विद स्ट्रेट बैक होनी चाहिए, ठीक है। लीन करें, जो भी आपसे क्वेश्चन करते हैं उससे आई कांटेक्ट करें, उसकी तरफ मुतवज्जो हो, और जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसके बारे में सोचें, और उसी को लिटरली इन अ ट्रू स्पिरिट उसको ही सुने, और उसी के मुताबिक आप उनको आंसर करें। और फिर क्या कहता है? आपका आंसर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फ्लूइड एंड बैक एंड फोर्थ, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द, उसी पॉइंट से रिलेटेड चीज़ उसे समझाएं, सो दैट इन ऑर्डर टू मेक
क्लियर दैट पॉइंट, फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट पॉइंट यू शुड गो बैक एंड फोर्थ। आप उसी पॉइंट के इर्द गिर्द जो बातें हैं, जो एलिमेंट्स उससे रिलेटेड हैं, उस पर बात करें, ठीक है। जितना आप एक्साइटमेंट शो करेंगे इस पोस्ट के लिए, उतना ज़्यादा इंटरव्यूअर एक्साइटमेंट शो करेगा आपके इंटरव्यू के लिए। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक और बात बताना चाहता हूँ। देयर इज़ वन थिंग यू कैन विच कैन गेट यू सक्सेस इन द इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यूअर को आप क्वेश्चन देते हैं कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछो, ठीक है। वैसे तो लोग क्या करते हैं, जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है जी, वो जो क्वेश्चन करते हैं आप उसको आंसर देते हैं। अब क्या है, आपका जो एरिया स्ट्रॉन्ग है, आपको नहीं पता कि वो आपसे किस इसमें डोमेन में क्वेश्चन पूछेगा। सो व्हाट हैपन्स, इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं, कुछ ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्लोज एंड। ओपन एंडेड क्या कहते हैं, यस जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप इंट्रोडक्शन देते हैं। वो आपसे एक क्वेश्चन करता है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप उस क्वेश्चन को अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से उसका आंसर देकर उसको रिलेट कर लें, ठीक है। उसको रिलेट करने, उसको अपने एरिया पे ले आएँ, उसको क्लूज दें, उसको हिंट्स दें, उसको निवाले दें, ताकि वो आपके एरिया में आए, ठीक है। लेट्स सपोज एक इंटरव्यू में आप बैठे हैं, आपसे वो पूछता है टेंसेस के बारे में, आपका एक्टिव पैसिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पैसिव वॉइस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रक्चर के बारे में आता है, आप उसको स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, फ्लॉम फ्लॉम, दिस इज़ द बेसिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ सेंटेंस, इट मे आंसर इन दैट वे, इट मे मीन इन दैट वे, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी कैन डू, सर्टन चेंजेस दैट वी कैन मेक इन अ सेंटेंस टू गिव सम सर्टन मीनिंग। फिर आपको उसको ले आते हैं, इसी को क्या रिलेट करते हैं। येस, इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वी हैव टू मोड ऑफ स्पीकिंग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। I would like to add that passive voice are used in this place, its configuration is this and these things, बस उसको आधे में छोड़ दें। उसको क्या हो जाएगा, oh yes well gentlemen you have talked about active and passive voice, what are these। वो आपके जब आपके एरिया में, आपके फील्ड में आ गया, आप उसको वहीं पे ग्रिप कर लेंगे, उस पर आपकी ग्रिप है, यू मे आंसर वेल इन दैट एरिया, इन दैट फील्ड, ठीक है। दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ सजेशन, अ सॉर्ट ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं बेटा। व्हाट ही एक्चुअली सेज, मोस्ट आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बड़ी बेसिक बेटा इंफॉर्मेशन है, इसमें बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स है जिनको एलेबोरेट करना बड़ा ज़रूरी है आपकी नेक्स्ट अपकमिंग लाइफ के लिए, बिकॉज आफ्टर दिस यू हैव टू फेस द इंटरव्यूज़, यू शुड नो अबाउट इंटरव्यूज़, ठीक है। आपको इंटरव्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, हाउ टू टैकल इंटरव्यूज़, हाउ टू मेक योर इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड सो दैट यू मे गेट सक्सेस, ठीक है। It all depends upon your preparation, the way you tackle that interview. If you know all these peculiarities, all these minute points, you may well excel in that interview. So इनको बेटा फिंगर टिप्स पे आप पे होने चाहिए। अगर आपके ये फिंगर टिप्स पे होंगे, you will never fail to succeed in an interview. आपको कभी नाकामी नहीं होगी किसी भी इंटरव्यू में। So as usual, your homework is you have to make possible MCQs from this. Okay, just learn by heart all these things, all the points that have been discussed in this, and furthermore what you have to do, just revise the lesson, the importance of family, that I have told you that your next e-assessment and assignment will be from the lesson the importance of family. आपकी next e-assessment जो आएगी और प्लस आपकी असाइनमेंट जो आएगी बेटा, वो उसी the importance of family जो lesson है उससे आएगी। तो till the next lecture, take good care of yourself. If you have got any ambiguity, any problem, you may ask me in the comment. I'll be there to assist you. Till then, Allah Hafiz, take care of yourself.